Good morning, children. Welcome back to this beautiful platform of Anand Prakash Educational Academy. I'm Chanda Bansal, Director of Anand Prakash Educational Academy. For the last 13 years, we have been giving coaching for JEE as well as NEET with all wonderful results. The reason being, under our guidelines, under our mentorship, children were very obedient to follow all the guidelines, to attend all the classes, to give all the tests. That's it. And so they could acquire their destiny. As of now, in today's circumstances, you need to attend all the live classes, watch all the video lectures, give all the tests which are framed by us, which are just follow the program which is set by us, attend all the physical classes. That's it. You'll be there at the top with maximum marks, with a very good percentage, as well as whatever is your dream, we will be there to fulfill all your dreams, to help you in attaining your dreams. So here we were dealing with electrochemistry, electrochemical cell we had started. Electrochemical cell में आपको बताया था कि there is a primary cell as well as there is a secondary cell. Primary cell में हमने किया था dry cell. And dry cell के reactions आपको याद होंगे. I do expect that you are able to remember all the things, you could understand the things. So second type of the primary cell है mercury cell. इन cells में जो आपको याद रखने वाली चीज़ है कि उसमें एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है और फाइनल रिएक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, बस इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. Mercury cell means it is the cell which is used in watches. One of the examples is it is used in the watches. Again, once it is used up, it cannot be recharged. तो mercury cell में एनोड क्या होता है? That is zinc again. Cathode is mercuric oxide. जैसा हमने पहले की क्लासेस में किया, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, एनोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा और कैथोड कैसा इलेक्ट्रोड है? पॉजिटिव, अनलाइक इलेक्ट्रोलिटिक सेल. ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है. जिंक लूजेस इलेक्ट्रॉन्स एंड कंबाइंस विद इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट इसमें KOH इज द इलेक्ट्रोलाइट. OH माइनस मेनली पार्टिसिपेट करता है. सो दिस विल बी जिंक ऑक्साइड प्लस water. So you can write and balance this, and along with that zinc की valency 2 होती है, so it will lose 2 electrons. In the same way cathode पे कौन सा reaction होगा? This will take up electrons. कितने electrons लेगा ये हम reaction लिखते हुए देखेंगे. Plus it will combine with water. Now you can see zinc का oxidation state यहाँ पे 0 है, यहाँ पे +2 है. रेडॉक्स रिएक्शंस आपने 11th में किया है, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना आपको सिखाया गया है. सो जिंक 0 से +2 है, दैट मीन्स इट इज़ ऑक्सीडाइज्ड. यहाँ पे मर्क्यूरी का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, जो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद हो जाता है Hg, मीन्स ये 0. सो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स लेगा? 2. देन ओनली Hg2+ विल बिकम Hg, और इसके साथ ये बन जाएगा यहाँ पे OH माइनस. सो मर्क्यूरिक ऑक्साइड चेंज हो रहा है मर्क्यूरी में, एंड इसको आप रिएक्शन को बैलेंस करोगे लाइक 2OH माइनस. द रिएक्शन गेट्स बैलेंस्ड. यू कैन एड अप द 2 रिएक्शंस एंड राइट द फाइनल रिएक्शन. तो इसमें कौन कौन सी चीज़ आपको याद रखनी है? एनोड पे जिंक है, कैथोड पे मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, और ये किस स्टेट में चेंज होते हैं इस पे भी क्वेश्चन आता है. तो जिंक चेंज हो रहा है जिंक ऑक्साइड में +2 स्टेट में, मर्क्यूरिक ऑक्साइड चेंज हो रहा है मर्क्यूरी में. 2 इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है इसमें. दिस वन इज लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, दिस वन इज गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड देन दोनों रिएक्शंस आपको बैलेंस करना है. बैलेंस करके आपको फाइनल रिएक्शन यहाँ पे लिखना है. सो व्हेन यू एड अप दिस you can go on writing HgO, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कैंसिल, 2OH माइनस यहाँ पे कैंसिल, वाटर भी यहाँ पे कैंसिल हो रहा है. सो डायरेक्टली क्या बन रहा है? जिंक ऑक्साइड
प्लस मर्क्यूरी. So 0 से +2 से 0, this is oxidation as well as reduction. So when this happens, there is flow of electrons from anode towards cathode and current flows from cathode towards anode. तो इतनी सी चीज़ आपको मर्क्यूरी सेल के लिए याद रखनी है. सेकेंड सेल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप विद द सेकेंडरी सेल. सेकेंडरी सेल मतलब the cell which can be recharged again and again. जैसे कार बैटरी lead storage battery that can be recharged, and number of reactions are there which take place in that cell. So lead storage cell, that is very important for examination point of view. So secondary cell, इसमें आएगा lead स्टोरेज सेल. ये आप बहुत अच्छे से इमेजिन कर सकते हो बिकॉज दिस इज द सेल विच इज़ यूज्ड इन कार एंड फ्रीक्वेंटली वी टेक आउट द बैटरी, पुट इट टू चार्जिंग, एंड वी आर डूइंग दिस एट होम. सो यू मस्ट हैव सीन दैट कि एक बैटरी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, एंड यहाँ पे हम वो एक सेल के बारे में डिस्कशन करेंगे. There are batteries with 5 pairs. There are batteries with more than that also. Bigger batteries are also there. So यहाँ पे एक बैटरी, एक सेल के बारे में हम डिस्कस करेंगे जिसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ये आपको पता है. दिस इज़ एनोड, ये है यहाँ पे कैथोड. एनोड is made up of lead and cathode is made up of PbO2, और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो है H2SO4. उसकी एक डेफिनेट स्पेसिफिक ग्रेविटी है, एक डेफिनेट डेंसिटी होती है H2SO4 की, तब ये बैटरी वर्क करती है. और यहाँ पे हम गैल्वेनोमीटर यूज़ कर सकते हैं टू नो द डिफ्लेक्शन ऑफ करंट प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं. सो एनोड पे लेड इज़ देयर, कैथोड पे लेड पेरोक्साइड इज़ देयर, और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इसमें H2SO4 है. सो पहली चीज़ ये. सेकंड, इसमें जब एनोड और कैथोड का कनेक्शन होता है तो रिएक्शन कौन सा होता है. सबसे पहले एनोड पे ऑक्सीडेशन, मतलब लेड 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा, ये बनेगा Pb2+. Pb2+ यहाँ पे आके सल्फेट से कंबाइन करेगा, तो दिस विल बी Pb2+ प्लस सल्फेट, ये हो जाएगा लेड सल्फेट. तो लेड सल्फेट की जो वाइट कोटिंग है वो इस पे डेवलप होती है. दिस इज़ द रिएक्शन ऑफ एनोड. इसको आप सम अप करके भी लिख सकते हो, लाइक Pb प्लस SO4 2-, ये बनेगा PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. ये हो गया एनोड का रिएक्शन. नेक्स्ट है कैथोड पे क्या होगा. कैथोड पे रिडक्शन होता है, means PbO2 will take the electrons which are lost from lead. PbO2 वो इलेक्ट्रॉन्स लेगा जो लेड ने दिए हैं. सो PbO2 प्लस इलेक्ट्रॉन्स, अगेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट से कैलकुलेट करेंगे, प्लस H2SO4 का 2H प्लस SO4 2-, ये कंबाइन हो रहा है. सो दिस विल चेंज इनटू PbSO4 प्लस, ये बन जाएगा यहाँ पे वाटर. अब आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे, लेड +4 में है, यहाँ पे लेड +2 में है, मीन्स इट विल एक्सेप्ट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो एनोड पे भी वाइट कोटिंग ऑफ लेड सल्फेट है और कैथोड पे भी वाइट कोटिंग ऑफ लेड सल्फेट है. ये रिएक्शन, कंप्लीट रिएक्शन और ये वाला रिएक्शन, दिस टेक्स प्लेस एट द टाइम व्हेन द बैटरी इज यूज्ड. मीन्स आप बोलोगे दिस इज द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ द बैटरी. अब बैटरी जब पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गई, उसमें इसका H2SO4 का कंसंट्रेशन कम हो गया, वाटर ज़्यादा हो गया, इसकी डेंसिटी 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से कम हो गई, तो वो बैटरी, उस बैटरी को अब रिचार्ज करना पड़ेगा. रिचार्जिंग में यू विल रिमेंबर कि सारे रिएक्शंस ऑपोजिट हो जाएंगे. क्यों ऑपोजिट होंगे? क्योंकि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था वो अब बन जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल.
यहाँ पे करंट का प्रोडक्शन हो रहा है और वहाँ पे करंट का यूटिलाइजेशन होगा, केमिकल एनर्जी बनेगी इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करते हुए, और वापस से एनोड और कैथोड पे लेड एंड लेड पेरोक्साइड आ जाएंगे। मींस लेड सल्फेट की जगह पे वापस जो इलेक्ट्रोड पे था लेड एंड लेड पेरोक्साइड वो वापस डिपॉजिट हो जाएंगे। सो रिएक्शन इसका ऑपोजिट हो जाएगा, क्योंकि इसको कनेक्ट करेंगे बैटरी चार्जर से। जब इसको कनेक्ट करेंगे बैटरी चार्जर से, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और ये है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। मींस ये कनेक्ट होगा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी चार्जर और ये कनेक्ट होगा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी चार्जर। तो ऑपोजिट रिएक्शन होगा जो रिचार्जिंग में फेवर करेगा। सो ड्यूरिंग रिचार्जिंग जो रिएक्शन होगा वो आप इसका रिवर्स लिखना स्टार्ट करोगे। ये हो जाएगा जो कैथोड पे था, मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड वाला रिएक्शन, जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। अब क्या होगा रिवर्स में, यहाँ ऑक्सीडेशन होगा और यहाँ पे रिडक्शन होगा। सो लेड सल्फेट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये बन जाएगा Pb प्लस सल्फेट। ये है रिडक्शन वाला पार्ट। अब ऑक्सीडेशन वाला पार्ट कहाँ पे हो रहा है, इस पार्ट में होगा ऑक्सीडेशन। सो इस रिएक्शन का ऑपोजिट लेड सल्फेट प्लस वाटर, ये हो जाएगा PbO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2H प्लस प्लस सल्फेट। मीन्स इस पार्ट में पॉजिटिव वाले में क्या होगा ऑक्सीडेशन और यहाँ पे क्या हो जाएगा रिडक्शन। तो इसका चार्ज यहाँ पे चेंज हो जाएगा। दिस विल बी द पॉजिटिव, दिस विल बी द नेगेटिव। मतलब ये हो गया इलेक्ट्रोलिटिक सेल का कैथोड और ये हो गया इलेक्ट्रोलिटिक सेल का एनोड। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये कैथोड था, जो अब क्या हो जाएगा एनोड ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एनोड, जो अब क्या हो जाएगा कैथोड। तो जब रिडक्शन हो रहा है तो कैथोड, जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एनोड। सो इसका रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा एंड H प्लस एंड सल्फेट आयंस कंटिन्यूसली सॉल्यूशन में ऐड होते जाएंगे और H2SO4 की रिक्वायर्ड डेंसिटी एग्जिस्ट करेगी। द सेल विल बी नाउ इन वर्किंग कंडीशन। तो कौन कौन से पॉइंट्स इसमें याद रखना है, लेड एनोड है, लेड पेरोक्साइड कैथोड है, H2SO4 इसमें इलेक्ट्रोलाइट है, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है। जब ये डिस्चार्ज हो जाएगा सेल ड्यूरिंग रिचार्जिंग, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है ये वाला, यहाँ पे PbO2 वापस आ जाएगा बिकॉज ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रही है, और ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड था यहाँ पे इसमें वापस लेड की कोटिंग डेवलप हो जाएगी। तो ये जो सेल होगा ये पूरी तरह से रिचार्ज हो जाएगा। So this is a very important topic for examination. So keep on watching all the video lectures so that you maintain the continuity of the topic. Like the channel, subscribe the channel and press the bell icon so that we are there with you with more and more of the video lectures. Till then, thank you so much.